Hi everyone, this is Sajid again. In today's video, I am going to discuss a very important topic about the mains, which is the tail ender words. And if you look at the screen, you can see a lot of words which are necessarily the part of the question which is asked in mains exam in all GS papers. And the list that you are seeing on the screen basically contains all such tail enders, or some of you call it as a tail words, or directive keywords or question tags, whatever you call it. This list contains all such keywords from 2013 to 2022. So you are not going to see any other question tag, all right, or any other directive keyword in any of the mains questions apart from what you see on the screen. सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कितना ज़रूरी है समझना, राइट? और ये सब कुछ सिमिलर दिखता है, तो हम हमारे आंसर में उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, राइट? And you have been hearing that you have to understand the demand of the question, you have to understand the demand of the question, and these words play a very critical role in putting a demand in the question. And that's why it is important that you understand these words very properly and frame your responses or answers so that you are meeting the demand of the question. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ईच ऑफ दीज वर्ड्स इज डिफरेंट? क्या हर एक के लिए हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, या फिर अगर उसमें डिफरेंसेस है तो वो क्या डिफरेंसेस है और कितने डिफरेंसेस है? बेसिकली इफ यू लुक एट फ्रॉम द एग्जामिनर स्टैंड पॉइंट ना, तो ये बहुत सारे इसमें से वर्ड्स एक दूसरे के पैरेलल है. The experienced examiners, they would not really much think about these words as such. They would generally go by some of the answers that you have written, like first couple of answers. When they check, they typically understand how deep you are in your subject, how much you have studied, and they tend to kind of read your responses very quickly there onwards and give you the marks accordingly. फिर कितना important है इनको समझना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको मैं बता सकूं कि ये जो वर्ड्स है ना, इसके हम लोग कुछ बड़े बड़े क्लासेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं. मीन्स इफ यू डिवाइड दिस इनटू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर एग्जैक्टली सेम और दे पुट द सेम डिमांड इन द क्वेश्चन, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है. सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया और ये एक्सप्लेनेशन को और ये क्लासिफिकेशन को समझ लिया, so you will never make a mistake in understanding the demand of the words. If you carefully look at this list, and this is alphabetically organized, so a lot of these words are parallel to each other. So what I've really done is I've gone into detail of each of these words. I've gone into lot of questions from previous mains papers and have classified these words into around 5 to 6 classes. Okay? And I'm going to explain those classes to you. So the first class, right? And you don't have to remember this, we will go step by step. First class is listing. तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको नेसेसरीली एक लिस्ट करने बोला है. तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 A B C D F G, whatever way you want to list it, you are expected to kind of create a list of something. Okay, तो ये कौन से वर्ड्स है? तो इसमें है आइडेंटिफाई, इंडिकेट, ब्रिंग आउट, राइट, और ये तीनों यूज किए हैं मेंस में. लिस्ट डाउन और आउटलाइन यूज नहीं किए हैं एटलीस्ट इन लास्ट 8-9 years, but I have still put it down because they may very much become part of such questions. तो हिंदी में इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको सूचित कीजिए या उल्लेख कीजिए. या आई थिंक दोज आर द 2 words आई कैन थिंक ऑफ इन हिंदी. सबका मीनिंग सेम ही है. तो अगर आप इसमें से कोई भी वर्ड उठा लो and replace it with some other word in the same list, then the question will mean exactly same. तो ये जो 5 फर्स्ट वर्ड्स है, आइडेंटिफाई, इंडिकेट, ब्रिंग आउट, लिस्ट डाउन, आउटलाइन, ये सब चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर लिस्ट फॉर्मेट में उनको रिस्पॉन्स दे दो. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट सम क्वेश्चंस, राइट, ये 2018 का क्वेश्चन है. What is the significance of the industrial corridors in India? Identifying the industrial corridors, explain their main characteristic. अभी ये तो वॉट तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है. बट व्हाट डज इट मीन आइडेंटिफाइंग द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स? मतलब आपको इंडिया में कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है उसका एक लिस्ट देना है एंड देन एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक. तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये लिस्ट मेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते. एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आइडेंटिफाइंग. यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इंडिकेट देयर मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज.
यहाँ पे मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज का लिस्ट बनाना है। फर्स्ट क्लास इज बेसिकली लिस्टिंग। नाउ ब्रिंग आउट, तो इसको मैंने लिस्टिंग में डाला है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉडर है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, why are the world's fold mountain systems located along the margins of continents? Bring out the association between the global distribution of fold mountains and the earthquakes and volcanoes. तो पहले तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है कि वाई का एक्सप्लेनेशन देना है, राइट। प्लेट टेक्टोनिक्स को एक्सप्लेन करना है, कहाँ कौन से टाइप का फॉल्ट होता है, कौन से टाइप के प्लेट मूवमेंट होती है, और उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे होता है। So that all you have to explain, but bring out the association between global distribution of fold mountains. मतलब आपको दुनिया में जहाँ जहाँ भी फोल्ड माउंटेन्स है और वहाँ पे होने वाले अर्थक्वेक और वोल्केनोज, उसका लिस्टिंग, उसके एग्जाम्पल्स का लिस्टिंग करना जरूरी है। दैट इज द एक्सपेक्टेशन इन दिस क्वेश्चन। एंड उसके अलावा व्हेन द वर्ड ब्रिंग आउट इज कमिंग, तो आपको उसका एक रिलेशनशिप बाहर लाना है, मतलब ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन, राइट। So you have to basically explain कि ये fold mountains है because of all the things that I have explained above, the reasons, right, the why. These are the volcanic eruptions which have happened, or these are the earthquakes which are happen, or for example, circum-Pacific zone है या Himalaya mountains है. So you have to basically prove that okay कि जो आपने reasons लिखे हैं उसका ये outcome है या proof है, list of examples, right? And that's how you will bring out the association between these two parameters. Next question भी ऐसा ही है, bring out the relationship between, right? तो दो चीजों के बीच की relationship, लेकिन उसमें क्या लिस्ट बनाना है? हिमालयन ग्लेशियर्स एंड द सिम्टम्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो हिमालयन ग्लेशियर्स और सिम्टम्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो इसके बीच का आपको रिलेशनशिप लाना है। तो यू हैव टू लिस्ट डाउन द सिम्टम्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और उसमें से कौन से हिमालयन ग्लेशियर से रिलेटेड है। ऑल दीज आर बेसिकली लिस्ट। नाउ देयर इज वन मोर वर्ड मेंशन, इसको भी लिस्ट में ही डाला है। इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि हम लोग मेंशन को जनरली शायद ऐसे समझते हैं कि एक बार मेंशन कर लिया, थैंक यू बोला तो बोले कि नो मेंशन, बट देन इन मेंस कॉन्टेक्स्ट में मेंशन वर्ड इज यूज्ड कपल ऑफ टाइम्स, राइट। 2021 में एक बार ही यूज हुआ है पिछले 7-8 सालों में, लेकिन दोनों जगह उनको लिस्ट का एक्सपेक्टेशन है। तो मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021। तो इसमें 2021 में जितने भी वोल्केनिक इरप्शंस हुए सबका आपको लिस्ट बनाना है। Briefly mention the alignment of major mountain ranges of the world and explain their impact on local weather conditions with examples, right? Similarly, here you have to give the list of major mountains in the world और वो उनका geographical location क्या है, right? उनका alignment कैसा है, कौन से type के है। All this you have to basically list down or articulate. ओके, सो ऑल दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। क्या इसका मतलब है कि बाकी के क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं लिखोगे? ऐसा इसका मतलब नहीं है, राइट। मैंने ये वर्ड को लिस्टिंग करके स्पेसिफिकली कॉल आउट किया है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एक लिस्ट बना के आंसर में देना है, विच माइट बी ओनली अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। आप देख सकते हो कि देर आर अदर पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन, राइट। सो वन थिंग विच यू शुड नेवर फॉरगेट इज टू आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, बट देन the question tag or the tail ender word which is used here is basically giving you an indication that they are expecting some kind of a list. चलो दूसरा क्लास क्या है? दूसरे क्लास के 2-3 फ्लेवर है, ओके। पहला है एक्सप्लेनेटरी, और इसको मैं डिस्क्रिप्टिव बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, राइट। लेकिन इसमें तीन फ्लेवर है। तो पहला क्या फ्लेवर है? एक्सप्लेनेटरी। लुक एट ऑल दिस वर्ड्स: क्लैरिफाई, इलैबोरेट, एक्सप्लेन, हाईलाइट, इलस्ट्रेट, थ्रो लाइट ऑन, इल्यूसिडेट। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? इसको आप हिंदी में करेंगे स्पष्ट कीजिए, या कहेंगे विस्तार कीजिए, विस्तार से वर्णन कीजिए, या कीजिए थ्रो लाइट ऑन को डालेंगे प्रकाश डालिए। इस तरह के वर्ड होंगे, राइट, या सुस्पष्ट कीजिए, करेक्ट। तो दोज विल बी द वर्ड्स इन हिंदी फॉर दीज वर्ड्स। इसमें क्या करना है? इसमें आपको जो भी स्टेटमेंट लिखा है या जो भी आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में एक ल्यूसिड भाषा में आपको उसको समझाना है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ओके। यू डोंट रियली हैव टू थिंक अ लॉट, इन अ सेंस दैट whatever you know or whatever has been asked, you have to only write it in your language in a elaborative way,
irrespective of what the question is, I mean what the keyword is, or rather the question tag is. Okay, so let us look at some examples. यहाँ पे देखो, India has immense potential for solar energy through, though there are regional variations in its developments. Okay? तो आपको पोटेंशियल कैसा है सोलर एनर्जी का, और रीजनल वेरिएशन उस पोटेंशियल में कैसे है, क्या फैक्टर्स है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, राइट। इसमें दो तीन चीज़ें आ सकती है, वो क्या है, सो यू हैव टू फर्स्ट बेसिकली डिफाइन इट, देन यू हैव टू गिव सम बैकग्राउंड ऑन इट, and then you have to probably give reasons, right, depending on what is the statement, या फिर you have to give the effects. So it is a combination of a lot of things, but basically this is open ended question, I would say, wherein you have to write the same thing, you have to expand on it with some data points, some explanation, some definition, and basically आपको समझाना है. Okay? तो देखो कितना सिंपल है. इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौसी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इलेबरेट, राइट. अभी यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आपको अभी बताना है कि कैसे लॉर्ड डलहौसी वॉज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, राइट. आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हो, मतलब यू हैव टू इंट्रोड्यूस डलहौसी, यू हैव टू से कि वो कौन था, फिर वो कब था, राइट, व्हाट वाज हिज रोल, what different roles that he played while he was in India. And then because the statement has been already given that he was the father of the modern India, then you have to talk about various reforms, right. So he did the infra development, फिर रेल होगा या पोस्ट होगा या इरिगेशन होगा, right. या फिर you have to then expand on some of the admin reforms that he did, right, civil services reforms, judicial या फिर legal reforms that he brought in. Then you have to write about social reforms, like you played a key role in sati abolition, right, or education, things like that, right. And then you have to say that this is how Lord Dalhousie was the father of the modern India, because he brought in a lot of things, or rather he either brought in or expanded or strengthened certain things which were not quite prevalent before his time. Okay, so it is as simple as that. Let us see one more example. यहाँ पे देखो, throw light on significance of the thoughts of महात्मा गांधी in the present times, right. तो अब यहाँ पे आपका फ्रीडम है कि आपको क्या लगता है कि महात्मा गांधी के विचार आज के ज़माने में कैसे रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है, right, rather relevant है, because here they say that significance of his thoughts in the modern times. So whatever, right, so truth होगा, नॉन वायलेंस होगा, क्लिनलीनेस होगा, राइट, स्वदेशी होगा, आत्मनिर्भर भारत, जो भी है, रिलीजियस हार्मनी होगा. तो सम ऑफ दोज थिंग्स, राइट, क्लिनलीनेस, रिलीजियस हार्मनी, आत्मनिर्भर भारत, नॉन वायलेंस, राइट्स इन प्रेजेंट टाइम्स, all those things are very relevant in today's times. So it is very simple answer, आपको straight away उसको explain करना है अपनी language. So all these words mean the same thing. So this is first type of descriptive question. The second is the factual. अभी यहाँ पे देखो, describe, right, यहाँ पे आएगा discuss. तो कभी कभी हिंदी में इसको भी वर्णन कहा गया है, इसको भी वर्णन कहा गया है, तो चर्चा भी कहा गया है, राइट. इसको व्याख्या कीजिए. डिस्क्राइब, डिस्कस, डिफाइन और इंट्रोड्यूस एक है, मैंने उसको डाला है, 2016 में ये वर्ड यूज़ हुआ था. नैरेट यूज वर्ड नहीं हुआ है, लेकिन इसी कैटेगरी का है. इसमें क्या करना है, इन द अर्लियर क्वेश्चन और अर्लियर क्लास, राइट, जो कि एक्सप्लेनेटरी क्लास था, इसमें आपको अपनी लैंग्वेज में, तो आपको थोड़ा फ्रीडम है कि आप इसको कैसे आर्टिकुलेट करते हो, या आप इसको कौन से डेटा पॉइंट इसमें सेलेक्ट करते हो आपको बताने के लिए. ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, इसमें भी आपको लिखना तो अपनी लैंग्वेज में है, लेकिन फैक्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा है. इफ़ यू लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क हियर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स. इसमें अभी आपका सोच का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं ना, जो उसका टाइप्स है प्राइमरी रॉक्स के, उसको लिखना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है. लैंग्वेज आपका हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है. व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स. तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट. वहाँ पे आपको
लॉर्ड डलहौसी के बारे में था, महात्मा गांधी का विचार आज की डेट में कैसा रिलेवेंट है, इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि आपको थोड़ा अपनी तरफ से सोचने का और उसको एक्सप्लेन करने का मौका था, लेकिन दीज आर मोर और लेस वेरी फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट सिटीज इन इंडिया कैनॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ रूरल अर्बन अर्बन इंटीग्रेशन। ये मैंने इसमें क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिस्कस नहीं लिखा है। okay, so understand this variation of this discuss this statement in the backdrop of rural urban integration। तो आपको एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दिया है, उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर ही आपको डिस्कस करना है। okay? तो फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट दिया है कि स्मार्ट सिटीज कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेजेस, तो स्मार्ट विलेजेस का होना क्यों जरूरी है, राइट? so then you have to bring in the aspect of urban rural integration। so there will be factors like I think the most important will be the population migration from villages to the cities। and then smart cities, पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट विलेजेस क्या है। तो इसमें कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कम्यूटिंग, राइट, डिजिटल सर्विसेज, ये सब फैक्टर्स आएंगे स्मार्ट सिटी में, राइट। लेकिन ये फैक्टर्स कब चलेंगे, जब पॉपुलेशन माइग्रेशन लिमिटेड होगा। पॉपुलेशन माइग्रेशन कब लिमिटेड होगा, अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज विलेजेस में अवेलेबल करा के दोगे, राइट। एंड दैट्स व्हाई स्मार्ट विलेजेस आर रिक्वायर्ड। so if people get the similar facilities, similar style of living, similar ease of transactions with the government or with anyone, and then employment opportunities, रूरल अर्बन इंटीग्रेशन, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। पहले तो देखना है कि विलेजेस और सिटी के बीच में क्या लिंकेज होता है, राइट। तो देयर विल बी पॉपुलेशन माइग्रेशन फॉर वर्क, फॉर बिजनेस, राइट। देयर विल बी डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ सिटीज़ ऑन विलेजेस। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विलेजेस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिटीज़, राइट। तो उनका इंटीग्रेशन है। अब ये इंटीग्रेशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हो स्मार्ट बनाकर, लेकिन आप एक ही पार्ट इम्प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है विलेजेस से, तो आपको दूसरा भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत ही ओपन एंडेड। ऑल दीज आर वेरी ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स और वर्ब्स, डिस्क्राइब, डिस्कस, राइट, इंट्रोड्यूस आर वेरी ओपन एंडेड। आपको जो भी इसमें लॉजिक लिखना है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड लाना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स लाने पड़ेंगे। और एक क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हाँ मैंने यहाँ पे डिफाइन, तो इसमें डिफाइन तो आप जनरली हर क्वेश्चन में करते ही हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली आर्टिकुलेट किया गया है। वैसे एक क्वेश्चन है 2018 का, डिफाइनिंग ब्लू रिसोर्सेज, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपको पहले ब्लू रिसोर्सेज को डिफाइन करना है, नेसेसरीली करना है क्योंकि वो क्वेश्चन का पार्ट है। फिर आपको प्रॉब्लम्स बताने हैं पिसिकल्चर के, राइट, फिश बिजनेस के, एंड देन आपको स्ट्रैटेजीज बताने हैं उस प्रॉब्लम को टैकल करने की, स्टेप बाय स्टेप, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इन नेचर देखोगे इन क्वेश्चंस का, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू रिसोर्सेज क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है और उसको टैकल करने की क्या स्ट्रैटेजीज है। इसमें आपके क्रिएटिविटी को ज़्यादा स्कोप नहीं है। सो दैट्स वाई आई पुट इट एज अ फैक्चुअल पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव rather than very where there is a scope for some creativity like the earlier question on महात्मा गांधी। मैं कहूँगा कि आप शायद डलहौसी का क्वेश्चन यहाँ पे भी डाल सकते हो, बट बिकॉज द वर्ब इज यूज दे आर डिफरेंट, आई थिंक दे हैव यूज्ड एक्सप्लेन, राइट, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेनेटरी में डाला है, लेकिन वहाँ पे भी आपको फैक्ट ही देना है, तो वो थोड़ा ओवरलैपिंग है। लेकिन ये माइनर थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आपको डिस्क्राइब या डिस्कस कहा गया है, आपको ज़्यादा फोकस फैक्ट्स पे देना है, फैक्ट्स ओरिएंटेड आंसर को ज़्यादा मार्क मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस है, विथ अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ इन इंडिया, इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द स्मार्ट, आई थिंक सिटी इज ओनली हियर, ओके, so because it is urban life, so you have to talk about the quality of urban life in India and then introduce the objectives and strategy of the smart city। इंट्रोड्यूस मतलब पहचान करा के देना, okay? तो आपको सिंपली लिखना है कि हाँ तो ये क्वालिटी है,
तो ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट आई वांट टू मीट और द गवर्नमेंट वांट्स टू मीट, फॉर विच इट हैज़ कम आउट विद द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, एंड दीज आर द strategy to implement that, right? Or these are the strategic factors which will be addressed by the smart city. So all of this mean the same thing. थर्ड, हाँ, ये दो जो वर्ब्स है ना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हुए हैं और आपको इसको समझना पड़ेगा. इसको मैंने थर्ड कैटेगरी में डाला है जिसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल. पहला देखो है कमेंट. कमेंट को आप हिंदी में कहोगे टिप्पणी कीजिए. एनालाइज को आप कहोगे विश्लेषण कीजिए. ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कमेंट तो आपको पता है, कमेंट्री क्या होता है, आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हो, राइट? हु इज द गुड कमेंट्रेटर, right? Who gives the facts and also give little bit of analysis, but his focus is on the facts, but then he also adds some analysis to it. For example, the commentator may say that, okay, this and this bowler has now, putting the fifth ball, the batsman is requiring 10 runs in 2 balls, and this is the fifth ball, he puts it on the good length spot upside the off stump, the batsman plays cover and it is misfielded, batsman gets 2 runs. These are the facts. He has described the facts. Now he will add some analysis to that. So he would then add like that, I'm very surprised that Virat did not play a big shot on this ball because he is needing 10 runs in 2 balls, means he's at least score a boundary, but because the ball was on the good length and outside the off stump, he could not do it, right? Or he tried to do it but he failed miserably. Or then you can say leg side is the strength of Virat and the bowler knew it, so he actually put the ball on the offside the off stump, which is a weak side of Virat, right? I'm giving an example. This is not factual. So he is adding some analysis to that ball, right? And that makes the commentary very useful or complete. तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली यही करना है. आपको पहले फैक्ट्स देने हैं, आपको पहले एक्सप्लेन करना है फैक्चुअल बेस पे, और फिर आपको थोड़ा एनालिसिस देना है. मैं कहूँगा कि 70% आप उसको फैक्ट्स दे दो, 30% आपको एनालिसिस देना है. बहुत ओपन एंडेड है कमेंट, मतलब कुछ भी कमेंट कर सकते हो, राइट? लेकिन दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द कमेंट्स, राइट? विच इज द एक्सप्लेनेशन प्लस एनालिसिस. South China Sea has assumed great geopolitical significance in the present context, comment, right? Present context में South China Sea important क्यों बन गया? So you will talk about the geographical location, right? How it is playing a strategic role, how it is important from the world trade perspective. Around 25% of the trade goes through the Strait of Malacca. From the overall control on the Southeast Asia region, what is the strategic importance of the location of the South China Sea? Then you may add a flavor from the India standpoint why it is important. That's how you will just comment on that. Next question. The reservation of seats for women in the institution of local self-government has had limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. Comment. क्या क्वेश्चन है कि औरतों को रिजर्वेशन देने के बावजूद भी लोकल गवर्नमेंट्स में उसका एक बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट हुआ है on the patriarchal character, right, of the Indian society or Indian political process. उसका इम्पैक्ट कम हुआ है, पैट्रियार्ची कम नहीं हुआ है इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस से, अभी तक ही मेल डोमिनेटेड ही है. तो इस पे आपको कमेंट करने बोला है. तो क्या करोगे आप? यू विल फर्स्ट गिव द फैक्ट्स. पहले आप मे बी 73rd 74th अमेंडमेंट के बारे में बात करोगे, वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बात करोगे, राइट? 33% वाला. फिर आप कुछ स्टैट्स दोगे कि लोकसभा में कितने वीमेन मेंबर्स है, लोकसभा राज्यसभा में. आई थिंक दे आर अराउंड 14 to 15%, बट देन लोकल बॉडीज़ में नीचे उसका नंबर थोड़ा बढ़ जाता है, राइट? तो मे बी इट इज़ अराउंड 30%. तो ऐसे कुछ आप फैक्ट्स पहले प्रोड्यूस करोगे. फिर आप देखोगे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है और इस पर कमेंट करना है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, राइट, इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पैट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस. तो इसके बावजूद भी महिलाओं का इन्फ्लुएंस बहुत कम है. तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, राइट? सूडो लीडरशिप, मतलब सरपंच पति,
फिर महिलाओं का आना, मतलब एक तो जितनी भी महिलाएं आती है ज़्यादातर पॉलिटिकल फैमिली से ही आती है, फैमिली ओरिएंटेशन ज़्यादा है, राइट, बेटी बहू एंड बीवी यही आती है पॉलिटिकल लीडर्स की। बाहर से औरतें कम आती है, क्यों? उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट का एस्पेक्ट आ सकता है, राइट, इसमें सोसाइटल प्रेशर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट आ सकता है, इसमें आउटसाइडर्स का एंट्री डिफ़िकल्ट है स्पेशली फॉर वुमेन। देन देयर कैन बी लैक ऑफ अवेयरनेस among women themselves about their political reservations or rights and things like that, right? So you can bring out such aspects and basically say कि हाँ, ये यू नो ये एक कारण हो सकते हैं कि अभी तक जितना इन्फ्लुएंस प्रभाव महिलाओं ने डालना चाहिए था पॉलिटिक्स पे उतना अब तक नहीं डाल पाई। लेकिन बिकॉज you are commenting, you can also give some positive examples, you know then you can call out certain women leaders who have entered the political process from outside और कई गांव के सरपंच बन गए हैं, right? There is one MBA girl in Haryana, I think she is the sarpanch of a village, and you can call out some 3-4 examples like that if you are aware of and say that ये अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है लेकिन इसको एक्सपीडिएट करना ज़रूरी है, यू कैन कंक्लूड दैट, राइट? तो ये कमेंट हो गया आपका ये स्टेटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है एनालाइज, विश्लेषण। अब एनालिसिस क्या है? एनालिसिस है कि आप कोई भी फैक्ट का बहुत ही बारीकी से उसको ब्रेक ब्रेक करके छोटे छोटे उसके टुकड़े करके चीर फाड़ कर लो, उसका पोस्टमार्टम कर लो, राइट? वो है आपका एनालिसिस। क्या इसमें बहुत डिफरेंस है? तो डिफरेंस इसमें ऐसे तो नहीं है, मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप वो जो इशू दिया गया है क्वेश्चन में उसके कितने कितने एस्पेक्ट को देख रहे हो या देख सकते हो, राइट? आपको तो पता है कि यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस, राइट? उसका फ्रेमवर्क वगैरह भी है, उसके सब डायमेंशंस भी है। तो आई थिंक अप्लाई दोज डायमेंशंस एंड बेसिकली explain कि from different perspective how that issue is looking like, and that's the analysis. So for example, ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है एनालाइज, इसमें लिखा है एनालाइज। दिस इज अबाउट प्रेसिडेंट्स डिले इन कमिटिंग डेथ सेंटेंस कम अंडर पब्लिक डिबेट एज डिनायल ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट? ये कोर्ट वाला ये क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। इसमें बेसिकली CSR क्या है, इंडिया में क्या है और वर्ल्ड में क्या है, इसका इंट्रो देना पड़ेगा। जब आपको कहा गया है कि इसका एनालिसिस करो कि उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल कैसे बनाते हैं, तो आप उसके कारणों की मीमांसा करेंगे। फिर देन यू विल बेसिकली से how the CSR actually impacts the brand of the company or reputation of the company, right? Positively, how it affects the customer perception, how it affects the investor perception, how it affects the employee perception। तो ज़्यादा कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हो, मार्केट में आपका रेपुटेशन बढ़ सकता है, कस्टमर के दिल में आपके प्रति अच्छी इमेज बन सकती है और इस तरह से वो प्रॉफिटेबल बनेगा यार, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। एम्प्लॉई अगर अपना कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है तो जनरली इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब अमंग्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, उनका मोरल हाई रहेगा, एस्पेक्ट्स लाइक दैट, राइट? एंड देन यू बेसिकली ब्रिंग आउट एज मेनी एस्पेक्ट्स एज पॉसिबल and then conclude that कि हाँ, CSR actually is a very good initiative and it has so many positive impacts। या इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स है तो उसको भी आपको डालना पड़ेगा, राइट? बट दिस इज व्हाट एनालिसिस इज, राइट? जितने छोटे 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 एस्पेक्ट को आप उस इशू के बाहर ला के आ सकते हो उसको लेके आना है और उसको एक्सप्लेन करना है। सो इफ़ यू लुक एट ऑल द डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज, राइट, दैट आई मेंशन्ड, जैसे कि ये है एक्सप्लेनेटरी, ये है फैक्चुअल और ये है एनालिटिकल, सब में आपको लिखना है और सब में आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन उसमें माइनर माइनर फ्लेवर्स है, थोड़ा सा फोकस चेंज होगा आपके आंसर का, अदरवाइज
डिस्क्रिप्शन सब में ही लिखना है. This is the class number 2 which I call as a descriptive, right? Where there are a lot of basically open-ended questions. फिर सिंपल है आगे वाला कंपैरेटिव. कंपेयर करना मतलब तुलना करना. डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश मतलब इसका अंतर बताना, इसके बीच में अंतर बताओ. ये वर्ड इसमें आएगा तुलना करो. तो ये वर्ड्स आएंगे कंपेयर. अच्छा, कंपेयर में और बाकी के वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? कंपेयर इज बेसिकली आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो, फिर उसमें से चाहे कुछ सिमिलैरिटीज भी बाहर आ जाए और कोई डिफरेंसेस भी बाहर आ जाए. लुक एट द क्वेश्चन. व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर इन इंग्लैंड? देखो, कंपेयर इज ओनली अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, so never forget that you have to answer all parts of the question. Discuss the quality of life of the people there during industrialization. How does it compare with that in India at present? इंडिया में आज का जो क्वालिटी लाइफ है वो इंग्लैंड के उस समय के क्वालिटी ऑफ लाइफ से कैसे कंपेयर होता है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहली बार हुआ था. कब हुआ था? अराउंड 1850 के आसपास हुआ. टुडे वी आर इन 2023 इन इंडिया. और आपको ये दोनों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर करना. दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कंपेयर करना है मतलब उसमें से सिमिलैरिटी भी आपको निकालनी है और उसके डिफरेंसेस भी निकालने हैं. राइट, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बिग डिफरेंस. क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर वुमेन, देयर माइट बी सम सिमिलैरिटी, क्योंकि तभी वुमेन्स राइट्स नहीं थे उतने, और अभी इंडिया में है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस है. तो यू कैन ब्रिंग आउट सम सिमिलैरिटी लाइक दैट. आगे के जो दो कीवर्ड्स है डिफरेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश, दे मीन एग्जैक्टली सेम. उसमें भी आपको कंपेयर करना है लेकिन यहाँ पे फोकस उनके डिफरेंसेस पे है. कंपेयर में फोकस सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों पे है, जबकि डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश में सिर्फ डिफरेंसेस पर फोकस है. वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. डिफरेंशिएट द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट्स. देखो, इसमें लिस्ट डाउन नहीं करना है आपको, इसमें डिफरेंस लाना है. मतलब हिमालय में लैंडस्लाइड क्यों होते हैं और सह्याद्रीज मतलब वेस्टर्न घाट्स में क्यों होते हैं, तो इसके डिफरेंसेस को लाना है. दैट इज़ द क्वेश्चन. हाँ, सिर्फ कॉजेस नहीं लिखना है आपको. ये देखो 2017. डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस और रिलीजियसिटी एंड कम्युनलिज्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द फार्मर हैज़ गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लैटर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. इसमें तीन चीज़ें पूछी है. एक तो आपको दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर एक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन. राइट, पहले आप डिफाइन करोगे रिलीजियसनेस को और फिर आप डिफाइन करोगे कम्युनलिज्म को. तो रिलीजियसनेस मतलब धार्मिकता, उसमें आप बेसिकली कहोगे कि बिलीफ इन गॉड और सुप्रीम पावर. दिस इज बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. फिर ये इंडिविजुअल है, राइट, और दिस इज बेसिकली सोशल और सोशियो पॉलिटिकल. दिस एब्सोल्युटली डू नॉट हैव negative impact on anyone. This will have negative impact. This is more about peace and virtue. This may lead to extremism or hatred, things like that. आपको ऐसे एक एक पॉइंट लेके इसको डिफरेंशिएट करना है. देन यू हैव टू टेक एग्जाम्पल. पूरी दुनिया किसका एग्जाम्पल लेगी? बाबरी मस्जिद का लेगी, है ना. तो आपको अगर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना है तो आप खालिस्तान का ले सकते हो, या फिर मतलब खालिस्तान एंड असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, या फिर आप गोधरा का ले सकते हो. मैं इसको अवॉइड करूँगा. राइट, तो ये ले सकते हो, ये ले सकते हो. तो ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लेना जहाँ पे ये दिखाया गया है कि धीरे धीरे रिलीजियोसिटी जो है वो कम्युनलिज्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई इंडिया में. इसका एक एग्जांपल आपको देना है. राइट, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट फोकस इज ऑन डिस्टिंग्विश. तो यहाँ पे क्या है ना कि ये पार्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है. तो ये कंपेरेटिव है, थर्ड क्लास. कंपेयर करना है दो चीज़ों को, डिफरेंसेस लाना है, सिमिलैरिटी लाना है. कॉन्ट्रास्ट भी एक वर्ड है. कॉन्ट्रास्ट में भी फोकस होगा डिफरेंसेस पे.
अभी तक यूज़ नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। चौथा भी सिंपल है कि उन्होंने आपको ऑलरेडी कुछ बताया गया है, आपको सिर्फ उसको जस्टिफाई करना है, आपको सिर्फ उसके प्रूफ देने हैं, आपको सिर्फ उसको सपोर्ट करना है। तो दैट्स वाई कॉल इट एज अ सपोर्टिव क्लास। इसमें क्या आएंगे? गिव रीजंस, जस्टिफाई, तो इसको हिंदी में आएगा पुष्टि कीजिए या पुष्टिकरण कीजिए, फिर सिद्ध कीजिए, प्रूफ को आएगा। गिव आर्ग्यूमेंट्स, तर्क दीजिए, उसका लॉजिक देना है कि ऐसा क्यों है। देखो क्वेश्चन कितने सिंपल है। इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एबल टू स्ट्रेटेजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम्स दैट वुमेन फेस एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पीयर्स? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब यहाँ पे क्या है ना कि उसने तुमको डायरेक्ट हाँ या नहीं बोला है, आपने उसने पहले पूछा है कि क्या ऐसे हुआ है, राइट? Has the national NCW, has it been able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private sphere? कितना efficient है? क्या ऐसे हुआ है? So first you have to say इसे नहीं हुआ है या हुआ है या partially हुआ है, and then whatever you select out of this you have to give reasons in support. But sometimes it is a direct thing. For example, the process of desertification does not have climate boundaries. Justify. अब यहाँ पे they are not asking whether this is right or wrong. They have said that okay, this is a fact. Now you only give me justification of these facts. So carefully understand the question. Sometimes you have to first give your kind of assessment and then give the justification for it, whereas sometimes they have already said what they have to say and you have to only justify that. So in this particular example, you can give the reasons for desertification. Desertification should generally happen or has happened in these areas, but now because of the climatic change factors, anthropogenic factors, right, certain the things have been changing, so it is basically related to climate change related question. And that's why how the desertification is expanding or is happening at the places where it is not expected to happen, right? You have to only justify that. यहाँ पे भी see what is your opinion in this regard. So first you have to say what is your opinion and then you have to justify your opinion with illustrations. Okay, so illustration को example बहुत important है. So whenever there is a specific call out for illustration, it is all about examples. Okay, but generally you know that in all your answers you have to give some example. So this is the fourth class of the question, which is supportive. I have included one more word which is used couple of times, which is account for. Now what is account? So in English language we say that have you accounted for it, means have you considered it, right? So if you are planning for a trek, then you say have you accounted for the weather conditions, have you accounted for the availability of transport, right, public transport. So have you considered that? Second is giving an account. So he narrated me the entire account of what happened on the trek. Okay, basically it is end-to-end description, so it is a very broad term. But then if you look at the questions, account for variations in the oceanic salinity and discuss its multi-dimensional effects, इसमें आपको reasons ही देने हैं, right? Reasons मतलब support करने वाले facts देने हैं. What is oceanic salinity? That you will define, right? The extent of salt, and then how it varies in different areas, right, and discuss its multi-dimensional effects. So first you will define salinity, then you will define how they vary and what are the reasons for these variations, right, and what are the supporting facts for this. Next is account for the huge flooding of million cities in India, including the smart ones like Hyderabad and Pune, suggest lasting remedial measures. So here also you will give supporting facts and supporting reasons. So you will say that there might be meteorological factors to that, there might be environmental, there might be ecological, and there might be anthropogenic. Anthropogenic में आएगा encroachments, lack of city planning, lack of awareness, slums आएगा actually mostly encroachment के अंदर, right? Now you are basically saying what are the factors which are supporting this statement. That is the account.
Okay, so you have to give some examples कि हैदराबाद और पूना में कब फ्लडिंग हुआ था. I think Hyderabad had actually in those two cities, a lot of flooding doesn't happen, just like Mumbai, or for that matter, as much as Bangalore also. They should have said Mumbai and Bangalore instead of Hyderabad. But nevertheless, first you define that, give some examples, give the supporting facts or the reasons, and then give the remedial measures. Right? That's the answer to this. But account for में सपोर्ट करना है आपको जो लिखा है उसको. राइट, आप ऐसे नहीं कहोगे कि हाँ नहीं ऐसे नहीं होता है. ओशनिक सैलिनिटी वेरी नहीं होती है. So you have to basically justify, and to justify you have to give the factors which are supporting that. That is what I call as class number 4. Okay, next class, right? ये है evaluatory. What is the difference? इसमें आपको वर्ब मिलेंगे assess, evaluate, examine. राइट, मैंने ऐड कर दिया है. हिंदी में ये आएगा परीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए. All these words would come. What is the difference in this? What is the, why this is a different class? Look at the question. Assess the importance of panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the panchayats can look out for the financing developmental projects? ये तो straightforward question है. But here they have said, assess the importance of panchayat system. Assess the impact of global warming. Examine the potential of wind energy in India and explain the reasons. Examine with justification. Here, evaluate. इसमें क्या समझ में आ रहा है? They are asking you to basically, see the merit. जो भी इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ना, फैक्ट दी गई हो या फिर स्टेटमेंट दिया गया हो, उसमें कितना मेरिट है, क्या अच्छाइयाँ या बुराइयाँ है, जिसके बेस पे आपको उसका मेरिट निकालना है. You have to find the pros and cons and then say that whether it is a good solution or it is not so good solution, it is a bad solution, it is ugly solution, what it is, because that's what you do when you evaluate. This is not to say that something is right or wrong. This is only to say that how much merit is there in that. अगर आपको कोई किसी ने एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया, बिजनेस प्रपोजल दिया, प्रोडक्ट प्रपोजल दिया, तो आप ये नहीं कहते कि ये गलत है. आप इसमें लोग हाँ ये उतना अच्छा नहीं है, मतलब इसमें ये अच्छा है और ये बुरा है. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेट ऑफ वर्ड्स. आपको असेसमेंट करना है, आपको इवेल्युएट करना है, उसको आपको एग्जामिन करना है, और इसको आपको देखना है कि इसमें क्या मेरिट है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है. फॉर एग्जाम्पल, assess the impact of global warming on the coral life system with examples. बेसिकली कोरल लाइफ सिस्टम के एग्जाम्पल लेके उसको ग्लोबल वार्मिंग का वजह से क्या क्या उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है और निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है. एंड देन बेसिकली बिकॉज यू आर डूइंग असेसमेंट, यू आर डूइंग इवेल्युएशन, बिकॉज यू आर एग्जामिनिंग, यू हैव टू कंक्लूड with your opinion on that based on your examination. So you have to say that the global warming will ultimately finish it, or global warming is actually eating it out and urgent action is required, or then you have to say global warming is not impacting it, whatever it is, but you have to give your assessment at the end of it. Let us see the next question. यहाँ पे देखो, examine the potential of wind energy in India and explain the reasons for its limited spatial spread. आपको पोटेंशियल विंड एनर्जी का एग्जामिन करना है. मतलब क्या करना है, उन्होंने ये बताना है कि विंड एनर्जी हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल इन इंडिया. जस्टिफाई. इफ दे हैव गिवन दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट and said justify, then you will only look at the positive. You have to, because they already concluded that it has a huge potential. Here they are asking क्या potential है. Examine the potential of wind energy in India and explain the reasons for its limited spatial spread. Then you have to look at the various factors which typically will be able to help you to assess the potential of wind energy in India. Right? कौन से जगह विंड है, कितना विंड है, कौन से विंड है, कब विंड है. Then you need to have some kind of data around how much wind can produce how much energy. Then you should have some data around what is the energy requirement in India.
then you should have some information about how much of that will be satisfied or potentially satisfied by the wind energy, right? You should be we should be aware of what is the current state of wind energy in India, right? And then you can say that okay, today India stands there in your conclusion, but then this is still the untapped potential that we need to work on. Or then you can look at the geographical spread, and they have in fact there's the next part of the question that why it has a limited spatial spread, राइट? सो लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड क्यों रहेगा? क्योंकि जहाँ पे विंड है उधर ही विंड एनर्जी चलेगा। तो कहाँ कहाँ पे विंड है, राइट? कौन से विंड है और कहाँ पे नहीं है और वहाँ पे फिर नहीं चलेगा, राइट? सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फ्रॉम द जोग्राफिकल विंड एनर्जी स्टैंड, because there's a assess the potential, no? You have to look at what are the favoring factors and what are the opposing factors for that. Unavailability of wind itself is a negative factor for the potential, right? Lack of technical skill set or a manpower might be a negative factor for the wind energy in a particular state, right? That's how you will articulate it, but you understand what I am trying to say here, right? Assessment, examination, evaluation is all about looking at the both sides of the story, identifying pros and cons, identifying good and bad factors, and then give your opinion or conclusion around it. Okay? इसका एक नेक्स्ट फ्लेवर है क्रिटिकली, क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली इवेल्युएट। ओके, इट कैन बी क्रिटिकली कमेंट आल्सो। अभी तक नहीं आया लेकिन आ भी सकता है। व्हाट इज क्रिटिक? लुक एट दिस वर्ड क्रिटिसाइज, राइट? यूपीएससी इज नॉट यूजिंग दिस वर्ड डायरेक्टली बिकॉज क्रिटिसाइज एक्चुअली ओरिजिनली डिडंट मीन दैट कि किसी की टीका करना। इसमें आएगा क्रिटिकली एग्जामिन को आएगा समीक्षा, राइट? पहले आता था आलोचना, समालोचना, अभी ये दो आएंगे ज़्यादातर। आलोचना को टीका कहते हैं हम लोग अभी आजकल, ये कब चेंज हो गया किसी को पता नहीं है। लेकिन व्हेन यू क्रिटिसाइज समथिंग और यू क्रिटिसाइज समवन, we tend to think that there is a negative connotation to that word. Okay, so that's why it is not being used a lot nowadays, but instead UPSC has started using critically evaluate or critically examine. Now what it means is critic का मतलब टीका नहीं है, right? You know that there is a critics award in movies. तो वो समीक्षा करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और फिर बोलते हैं कि हाँ ये मूवी अच्छा है। तो अगर वो टीका ही करते, अगर वो क्रिटिक है और वो सिर्फ आलोचना ही करते, तो फिर वो अवार्ड क्यों देते, है ना? When you say I am critically evaluating or critically examining, I am being very very objective in my approach and I am focused on both sides of the story. My focus is laser sharp when I am doing critical evaluation. I am evaluating, in the previous slide I was evaluating, तो इसमें बहुत माइनर है, मतलब इवेल्युएशन में भी आप दोनों साइड को देख रहे हो, लेकिन जब आप क्रिटिकली इवेल्युएट करते हो ना, यू आर बेसिकली अ थर्ड पर्सन। आप बहुत ही अनबायास्ड हो, आप में कोई भी प्रीजुडाइस नहीं है, आप सिर्फ फैक्ट्स को देख के कंक्लूजन निकालना चाहते हो। आप अपना ओपिनियन, अपना बायास, अपना थॉट प्रोसेस विदाउट प्रूफ इसमें कहीं भी नहीं ला रहे, राइट? दैट्स द क्रिटिकल इवेल्युएशन। लुक एट सम क्वेश्चन। Critically examine the compulsions which prompted India to play decisive roles in the emergence of Bangladesh. तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि क्या इंदिरा गांधी जी को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, इसके क्या कारण थे, राइट? उनके क्या कंपल्शंस थे, अगर किया तो क्या, क्यों किया, अगर नहीं करते तो क्या होता, उसके क्या निगेटिव इम्प्लीकेशंस होते, राइट? ऑल दिस फैक्टर्स, राइट? सो व्हाट वाज फोर्सिंग हर टू काइंड ऑफ टेक दैट डिसीजन, व्हाट वाज not something that she considered or not considered, right? You have to bring up all those aspects when you are critically examining or critical. और एक क्वेश्चन देखो, the interlinking of rivers can provide viable solutions to the multidimensional interrelated problems of droughts, floods, interrupting navigation. critically examine ये बोल रहा है कि interlinking of river जो है, राइट, नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट, ये एक वायबल सॉल्यूशन है या दे सकता है, कैन प्रोवाइड अ वायबल सॉल्यूशन जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि ड्रॉट्स, फ्लड्स और नेविगेशन में हेल्प कर सकता है। तो आपको इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो व्हेन यू आर क्रिटिकली एग्जामिनिंग यू हैव टू लुक एट द प्रोस। तो क्या होगा इंटरलिंकिंग रिवर से? हाइड्रो पावर में होगा हेल्प, फिर वाटर अवेलेबिलिटी, राइट, जैसे इन्होंने बचाया ड्रॉट्स
फ्लड कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कॉन्स भी देखना है। कॉन्स क्या होंगे? कॉन्स होंगे कि इसमें एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होगा, इकोलॉजी पे इम्पैक्ट होगा, फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे। दूसरा है आपको पॉपुलेशन मतलब लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, इसका ट्राइबल पे इम्पैक्ट होगा क्योंकि कई सारी जंगलों से नदियाँ चली जाएगी, इनका फिर माइग्रेशन करना पड़ेगा। इसका एक इकोनॉमिक बर्डन होगा, इसका स्टेट टू स्टेट रिलेशन पे इम्पैक्ट होगा फेडरल सिस्टम में, इसके इम्प्लीकेशंस है। इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी है, चाइना के साथ, इंडिया के बांग्लादेश के साथ, क्योंकि इनकी रिवर हमारे पास आती है, हमारी रिवर इनके पास जाती है। तो कल की डेट में हम अगर रिवर इंटरलिंकिंग कर ले तो चाइना कर ले तो हमको दिक्कत हो सकती है। तो आवर नेगोशिएशन पावर विथ चाइना इफ़ यू हैव डन द सेम थिंग might be less, right? Or then there might be you and cry from Bangladesh about our projects. So how do we manage that? So then you have to look at both sides of the story. Although they have said that कि ये कर सकता है, right? Instead of critically examine, if they say that justify, तो फिर आप सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट लिखोगे। But now you are examining, right? You are neither supporting nor opposing. You are looking at the facts, you are looking at the implications, and then you have to say that there are too many negative implications. I mean, if you think so for a particular question, and that's why you may have to possibly do it at a smaller scale or for the smaller rivers, but then look at certain alternatives of solving some of these problems and things like that, right? So how do you strike a balance between pros and cons? Your conclusion will be very, very important for this kind of question, because that's where your ability to look at both sides of the story and then drawing a conclusion, which is a very important quality of an officer, will be assessed, right? So this is the evaluatory class. So these are the 5 major classes. Now there are some miscellaneous terms. ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? व्हाट होगा, वाई होगा, हाउ होगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप बचपन से करते आ रहे हो। सजेस्ट मेजर्स, इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट बताना है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, राइट? सम ऑफ दिस टर्म्स आर बीइंग यूज्ड. I'm not calling them as a question tag, but some important words. These are certainly, question tag or directive keyword. इसमें एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ तो सीधा है, व्हाट आर द चैलेंजेस। यहाँ पे भी स्ट्रेट पूछा है कि वाई दे वेर टेकन। यहाँ पे देखो, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी, डिस्कस ना। यहाँ पे ये है टर्म, राइट? लेकिन मैंने इसको हाउ में डाला है क्योंकि ये अगर आपने लिखा भी नहीं ना, फिर भी ये क्वेश्चन का मतलब सेम ही है। यहाँ पे आपको बेसिकली यू हैव टू टॉक अबाउट महात्मा गांधी रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस एंड देन गिव सर्टेन एस्पेक्ट्स अबाउट कि अगर वो नहीं होता तो क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। दिस इज द हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो टू कंक्लूड दिस, राइट, मेरा ये कहना है कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मोटा मोटा मतलब ब्रॉड कैटेगरीज आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, राइट? यू डोंट हैव टू कि हर एक वर्ड का मीनिंग आपको रटना है या याद में रखना है कि ये सेट ऑफ वर्ड्स है, अगर ये आ गया तो ये अप्रोच है, ये आ गया तो ये अप्रोच है, कंपैरेटिव है, इवैल्यूएटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, ज़्यादातर तो डिस्क्रिप्टिव ही है, राइट? लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिव भी ओवरलैपिंग है, मतलब कई जगह डिस्क्रिप्टिव में लिस्टिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे वो स्पेसिफिक लिस्टिंग वाले वर्ड है ना, आइडेंटिफाई करना है, मेंशन करना है, तो आपको कंपलसरी लिस्ट बनाना ही है। दैट्स व्हाई आई पुट इट इन अ सेपरेट कैटेगरी. So what is your takeaway? What is your understanding? The keywords matter. I mean the question tags matters. Tail enders matter. But then you don't have to get bogged down by them. Okay. More or less सबका concept broader level पे सेम ही है. माइनर उसके फ्लेवर्स है. आप अगर ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो आपको ये फ्लेवर ध्यान में समझ में आ गए होंगे and you will be very comfortable to answer these questions as per the demand of the question, right? एग्जामिनर्स विल नॉट बॉदर लॉट, मतलब ऐसा स्क्रूटिनी नहीं करके देखेंगे इसने कमेंट ही किया है या इवेल्युएट किया है या क्रिटिक किया है, नहीं देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. रिमेंबर दिस ब्रॉडर कैटेगरीज एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन. बट now that we have looked at many mains questions and their different flavors and the demands of the question,
हमारा इसमें से टेक अवे क्या है? टेक अवे यह है कि आपको मेंस का पढ़ाई कैसे करना है, राइट? If you saw all the questions that we took as the example, and trust me, I have tried to mix from geography, polity, history, all these subjects. More or less सबका type similar ही है. If you are reading a news, if you come across a current affair, if you are reading a theory, if you are reading a particular topic from any book, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो advanced book हो, you have to think of various aspects around that particular topic, around that particular current affair, around that particular news or the issue. What are those aspects? कि ये क्यों हो रहा है, what, right? ये कब हुआ, when, how, right? कैसे हुआ, why, reasons. You know that कि in so many tailenders, the reasons are expected, so you have to always think about कि ये क्यों हो रहा है. If something is happening in Manipur, why it is happening. Effects and consequences. If this has happened, then what will be its effects? What if? Now, this is something which is very creative, because you saw a couple of questions. अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, right? These kind of questions are sometimes asked, correct? But I put that as a separate dimension of analysis of the issue. If what if आपको समझना पड़ेगा. Relation to current dynamic if it is a static, relation to static if it is a current affair, right? If there is a earthquake in northern India, then you have to link it to the static, saying that कि ये हिमालय का fold mountain tectonic, right? If there is a crack developing in Ethiopia, you have to understand what is the reason for it, related to static, right? And vice versa. You know the coral reef ka entire structure or locations, but then you have to link it to the climate change, uska kya impact hai, right? And then you have to give some current examples, because the impact is happening only now, right? So you may be aware of why certain coral distribution is in a certain way, but then you have to articulate how it is linked to the current affair. मतलब समझ के लेना है, आर्टिकुलेट तब करना है अगर क्वेश्चन में पूछा हो, बट व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर यू हैव टू लुक एट ऑल दिस एस्पेक्ट, एंड देन रिलेशनशिप विद अदर न्यूज़ और करंट अफेयर, राइट? इफ some things are happening, then are they interlinked with each other? Because then you can bring out those examples, bring out those implications or consequences, bring out the reasons and the cause and effect analysis, right? So the interlinking is very, very important. And then all this needs to be supported by various reports, data points, numbers, facts and figures, right? And supporting and opposing arguments, right? Frame. When you are writing your notes, you have to frame your arguments like that. But then report data points बहुत important है. आपको कई जगह, जैसे वो विमन का क्वेश्चन था, राइट, कि पैट्रियार्कियल में इम्पैक्ट, सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रोसेस में इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको अगर पता ही नहीं है कि कितने वुमेन है कितने नहीं है, इफ यू डोंट साइट अ रिपोर्ट, इट डज नॉट गिव द ऑथेंटिकेशन टू योर आंसर, इट डज नॉट सब्सटेंशिएट द फैक्ट दैट यू हैव रियली read about the issue. For everything that you read, any associated data, कितने कैंसर पेशेंट है, कितने डायबिटिक इंडिया में कैसे बढ़ रहा है, कोई भी नंबर आप कम अक्रॉस करें, उसको नोट डाउन कर लो, वो पर्टिकुलर करंट अफेयर के साथ उसे रिलेट कर लो और उसके साथ ही नोट डाउन कर लो. So that's all for today. This has been a long video, but I hope that it has been useful to you. If you are still watching it and if you like it, please subscribe to the channel, because I really want these videos to reach to the maximum UPSC students. I will continue to bring these videos. I'll bring CSAT and the animated geography videos as well. So please subscribe to our channel. We are really going to bring you a very fascinating content, which is certainly going to help you in your preparation. So thank you very much. I'll see you in the next video.